शुभ प्रभात, कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर फिट एंड साउंड देयर. So children, as you know that this is the last chapter of your syllabus which we were continuing from the last week. So this is the last lecture of the same chapter, chapter 17, garbage in, garbage out. I hope you all have studied it properly, as I had divided this chapter into 7 or 8 portions so that you guys may learn it clearly and properly. So here I would like to revise the same topics which I had covered in previous videos. So children, in previously we have learned about what are waste materials. Means waste क्या है? That material which can not be used further. अब आगे उस चीज़ का कोई हमारे पास यूज़ नहीं है, that is called waste material. Okay, later I had explained you about types of wastage. So there are two types of wastage, biodegradable and non-biodegradable. Okay, later I had explained you about management of wastes. Means वेस्ट मटेरियल जो है उसको हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, सो दैट आवर एटमॉस्फेयर बी pollution free. Okay, so first method that is included in management of waste is segregation. Means to sort out these two waste material in separate bins. Means we need to throw or we need to accumulate the disposable waste in green colored bin, while we need to throw the non-biodegradable waste in blue colored bins. Okay, later was the second method that is included in management of waste, that is landfilling. Landfilling क्या होती है? कोई भी large open area where the whole garbage of a particular city or particular area is thrown is known as landfilling. Means आपके शहर से बाहर कोई भी लार्ज ओपन एरिया है जहाँ पर आपके शहर का, आपके या मोहल्ले का या कोई भी पर्टिकुलर एरिया का गार्बेज वहाँ पे थ्रो किया जाता है और आप इस तरीके का नज़ारा देखते हैं, दैट इज़ landfilling. Okay, next is composting. With the help of disposable waste we prepare compost. This process is called composting, that is very helpful to treat or to manage the waste. Okay, later was vermicomposting. Means with the help of the red worms or earthworms farmers used to prepare the fertilizer, or you can say compost, is called vermicomposting. Okay, last one was the 3 R's. Means reduce, reuse and recycle. Those materials which are very dangerous after using, or those waste material which are not disposable with the soil, that should be used और दैट वी हैव टू रिड्यूस. यानी कि ऐसी चीज़ें जो सॉइल के साथ मिक्सड अप नहीं होती हैं या डिस्पोज नहीं होती हैं उनका हमें यूज़ कम करना चाहिए. मीन्स रिड्यूस. ओके, देन रीयूज़, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसा टर्म है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम अभी और भी यूज़ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए. ओके, next is recycling. Recycling is also very important term which helps us to manage the waste. Later was recycling of paper. पेपर को रिसाइकिल क्यों किया जाता है और क्यों होना चाहिए? बिकॉज अवर इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटिव कंट्री. ओके, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है एंड अबाउट
8:10 मीन्स 8:10 जो रेशियो है कि कितने लोग, आजकल तो सारे ही लोग लिटरेट होते हैं, दे ऑल वांट टू स्टडी। तो सभी के पढ़ने के लिए पेपर किधर से आएगा? यू नो दैट फ्रॉम वेयर वी गेट पेपर, वी गेट पेपर फ्रॉम ट्रीज। तो ट्रीज को हम कट करके इतने सारे अगर पेपर्स बनाएंगे तो ट्रीज ख़त्म होंगे, एंड फ्रॉम वेयर वी गेट ऑक्सीजन देन। ओके, तो हम क्या करते हैं, पेपर को रिसाइकिल करते हैं जिससे कि सभी की नीड्स को फुलफिल किया जा सके। ओके, लास्ट वन इज प्लास्टिक बून और बैन, यानी कि प्लास्टिक को बैन क्यों करना चाहिए या क्यों किया जाता है? बिकॉज इट हैव सम हेल्थ हैजार्ड्स। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं दैट आई हैड टोल्ड यू, दैट आई हैड एक्सप्लेन्ड यू इन प्रीवियस वीडियो अबाउट पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक बैग्स। अगर हम कहीं पे भी फेंक देते हैं तो वो कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज़ में रन करके हमारे ड्रेनेज सिस्टम को चोक करता है। ओके, नेक्स्ट है, अगर हम इनको जलाते हैं तो बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस जो होती हैं वो रिलीज़ होती हैं, जो हमारे लिए बहुत सारे बीमारियों का कारण बन सकती है। ओके, अगर हमारा लेफ़्ट ओवर फूड कोई भोजन बचता है और हम उसको विद पॉलीथीन बैग्स के फेंक देते हैं तो जो एनिमल्स होते हैं वो फूड के साथ साथ उस पॉलीथीन को भी खा लेते हैं, जिससे उनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो पूरा चोक हो जाता है, एंड दैट एनिमल हैव टू डाई, और वह जानवर मर भी जाता है। पॉलीथीन बैग्स जो भी होते हैं, अगर उनको रैग पिकर्स जो हैं, कबाड़ी वालाज हैं, वो अगर उठा ले जाते हैं तो वो भी उनको वॉश आउट करके दोबारा से उनमें पैकेजिंग करने लगते हैं। दैट इज़ वेरी इंजीरियस टू अवर हेल्थ। अगर हम प्लास्टिक का यूज़ रिड्यूस करें, यानी कि कम करें या ओवर यूज़ करने से बचें, तो हमको क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा शॉपकीपर्स को हमें पूछना चाहिए, किसके लिए? कैरी बैग्स दैट इज़ मेड विद क्लोथ और जूट, कपड़े से बने हुए कैरी बैग या जूट से बने हुए कैरी बैग को मांगना चाहिए। ओके, जो भी फूड मटेरियल्स हैं, एडिबल फूड मटेरियल्स हैं, उनको हमको क्या करना चाहिए? किसी भी पॉलीथीन बैग्स में पैक नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा टी वगैरह है, चाय है, लोग होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में क्या करते हैं, किसी भी दुकान से पन्नी में ही पैक करा लेते हैं, पॉलीथीन बैग्स में। दैट इज़ वेरी इंजूरियस टू आवर हेल्थ। ओके, सो you can observe figure number 17.13. There are the bags, carry bags that is made from jute, and in second one the bag is made with cloth. Recycling of plastic. Plastic recycling is the process of making new plastic material by using waste plastic products. जो भी वेस्ट प्लास्टिक है या जो भी मटेरियल है प्लास्टिक का वो हमारे यूज़फुल नहीं है, उसको वापस रिसाइकिल करके नई चीज़ें बनाई जाती हैं। बाय रिसाइकलिंग यूज प्लास्टिक आइटम्स वी कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स। रिसाइकलिंग ओल्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूजेस 20% to 40% लेस एनर्जी देन। ओके, अगर हम न्यू प्लास्टिक जनरेट करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, और अगर पुरानी ही प्लास्टिक से हम नई प्लास्टिक बनाते हैं तो 20 to 40% उसमें लेस एनर्जी लगती है। इट कुड रिड्यूस ऑयल कंजम्पशन दैट इज़ रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रेश प्लास्टिक। ऑयल कंजम्पशन जो होता है, ऑयल जो लगता है न्यू प्लास्टिक बनाने में, वो पुरानी प्लास्टिक से न्यू कोई भी चीज़ बनाने में 20 to 40% एनर्जी कम लगती है। Fresh plastics and will also reduce the landfill space. Toys, park benches, car parts, chairs and decorative items can be made from recycled plastic. Recycled plastic से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं? खिलौने, ओके, कार पार्ट्स, पार्क में जो बेंचेस वगैरह होते हैं, झूले होते हैं प्लास्टिक के, वो भी, चेयर्स, डेकोरेटिव आइटम्स एट्सेट्रा। Okay, now you can observe
So students, observe what is written on your screen right now. There is a slogan, नो से नो टू प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक को हमेशा ना कीजिए. वेन एवर यू आर गोइंग टू मार्केट और वेन एवर यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग, प्लीज़ हैव योर कैरी बैग्स विद यू दैट इज़ मेड विद जूट और क्लोथ. अगर आप बाज़ार जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके कैरी बैग्स. इफ़ शॉपकीपर्स आर ऑफरिंग यू द पॉलीथीन बैग्स, प्लीज़ नो टू इट. Okay, so this was your complete chapter. Please do revise the same topics which I have cleared in this video. Till then, please take your good care and bye bye. Have a good day.